SBL or in pulmonology, and it is supposed to be a clinical meeting. आमतौर पे जो हमारे पास SBL होता है वो वार्ड के अंदर होता है और एक छोटे ग्रुप के साथ होता है, क्योंकि इंटरैक्टिव होना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी आर हैविंग दिस ऑनलाइन, एंड आई वुड लाइक टू मेक इट useful for you. I'm a clinician, and I have taken your classes, so you must be familiar with me. My name is Dr. Mirza Saifullah Beg, and I am assistant professor of pulmonology in Oja Institute of Chest Diseases, Royal University of Health Sciences. And when I got this task of SBL with around 500 students who will be online, so I thought, okay, how will we make it interactive? So I saw your timetable, and yesterday you people did examination of respiratory system. So I thought, okay, we should do history taking and clinical examination of respiratory system in detail, क्योंकि आप लोगों ने कल ये जो है वैसे ही जो है डिस्कस किया है, तो फ्रेश भी होगा और हम इसको मजीद जो है अच्छा कर लेंगे. एंड वंस इंशाल्लाह ताला जब जो है थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, so we will be able to practice it. And remember that history taking and examination, it is the most important thing, because a good history and examination lead to a good diagnosis, and then you can treat. So whenever a patient come to you in clinic, or you visit a patient in ward, you have to take a very good history. So for a good history, it is divided into certain headings. So आप लोग सब जो उर्दू समझते हो, या हम जो इंग्लिश के अंदर इसको करें या इसको मिक्स करें? I want it to be interactive. You can write down, and so that I can see that you are listening to me and are you understanding it or not. So can I see if your responses? Atif, are you there? How would I know that you people are there and you people can understand what I'm saying? Atif? So I think that maybe because you people were very interactive in the lecture, so I think that chat option is not there. So I will continue it. So we start with introduction. But let me talk to Atif first, because I don't want it to be wasted. Please give me a second. वालेकुम अस्सलाम. ओवैस साहब बात कर रहे हैं? जी ओवैस साहब, डॉक्टर सैफुल्लाह. जी मैं डॉक्टर सैफुल्लाह बात कर रहा हूँ. सर ये नेट बंद हो गया था यहाँ पे. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो है मुझे स्टूडेंट्स के जो है चैट नहीं नजर आ रही है. अच्छा, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं?
लेकिन इसके अंदर जो लेकिन इसके अंदर तो स्टूडेंट तो मुझे नजर आ रहे हैं और मुझे, लेकिन जो है वो चैट नहीं कर पा रहे हैं मुझसे। तो ये नेट का इशू मेरा है कि क्योंकि नहीं मैं, अब क्या करें? अभी मैं स्टॉप कर दूं? आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, वो जो है वो असल में जो है नेट बंद हो गया तो फिर मैंने फोन उठाया तो मुझे अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो कि जो है कितना जो है लेक्चर जो है आप लोगों ने सुना था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ पार्ट ऑफ जो है लेक्चर जो है वो जो है मिस हो गया। सो वील स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, नाउ आई कैन सी योर चैट आल्सो। ओके, thank you for all the wishes and एक्सेस जो है वो मेरे ख्याल में अब सबको मिल गई होगी। सब पार्टिसिपेंट्स 87 आर वेटिंग। जीशान, so as I have previously told you that SBL is scenario based learning, and it is supposed to be a clinical thing in which you people come to the clinical ward in small groups, but unfortunately we are doing it on web, and to make it more fruitful we are going to discuss history taking and clinical examination. So history taking is the key to reach the diagnosis. So so history taking is a science as well as an art. So whatever we are going to discuss today, I hope that after this lectures you are going to open your clinical books, a good book, which should be by an international author, and go through whatever we have discussed here. So are you people all ready? Should we start? So a good history start with introduction. In introduction, we need to know about name of the patient. Why name? Because we want to address the patient and we need to keep a record. Then many people have got similar names, so therefore we want to know that son of or wife of. And then gender, age. Why gender? Because many diseases are more common in men and many are common in women. Then age, because as for gender, many diseases are more prevalent in older age groups like benign prostatic hypertrophy, COPD, cataract, and some are more in juvenile age group. Then we need to know occupation. In occupation, we need to know lifelong occupation. मतलब अभी अगर पेशेंट जो है कॉबलर है तो उससे पहले जो है वी डोंट नो कि वो कल कॉबलर बना है, इससे पहले वो जो है कोल वर्कर हो. So we need to know the lifetime occupation, and there are occupational hazards involved with many occupations, like we physicians are at risk of many nosocomial infections which we catch from patients, like as in this novel coronavirus pandemic, many healthcare workers are being exposed and are getting sick. So we need to know the occupation. Then we need to know the address, because many diseases are due to industrial exposure, or like fluorosis is more common in areas where fluoride is more in water.
So we need to know where patient is coming from. Are you people with me? Can you type something? Good. Okay. So after after introduction, we need to know that what was the mode of admission. Either you are seeing a patient in ER or in an OPD or in a ward. So if in ward, you need to know at what time patient was admitted or what was the mode of admission. A patient who is admitted from OPD may be a cold or chronic case, and someone who is coming in emergency at 2 a.m. at night will be very sick because he came at an odd time. So we need to know mode of admission and time of admission. After that, what we will ask, what will be the next heading? Anyone? I'm waiting. After that, we will ask for presenting complaints. So presenting complaints are the complaints with which, yes, very good, presenting complaints. Sarah Sunny answered me. So presenting complaints are the complaints which brought the patient in. Like in respiratory system, what can be the presenting complaints? Anyone? Anyone? Yes, this is an abbreviation, but we don't like it, write it like this. Shortness of breath, cough, chest pain, dyspnea. Very good, very good. So, very good. Okay. So, the presenting complaints in respiratory system are cough, shortness of breath, or we call it dyspnea, then chest pain, fever, weight loss, hemoptysis. All right. So if the patient is having all of these complaints, how are we going to write them? Anyone? जल्दी जल्दी टाइप किया करो. Very good. Who wrote it first? Oh, नाम ऊपर चला गया. Sorry. Chronological order. So what is chronological order? जो कंप्लेन पहले हुई वो पहले. हिस्ट्री जो है ना, वो हिस्ट्री किस तरह से, हिस्ट्री को हम कह सकते हैं हिज स्टोरी. तो ये कहानी होती है. तो कहानी जो है वो शुरू से स्टार्ट करनी होती है. तो जब वो शुरू से स्टार्ट होगी तो फिर हमें समझ में आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट इज हैविंग हाई ग्रेड फीवर, cough with sputum, and after that he started developing left-sided chest pain, which was gradual, and now he is short of breath. So our diagnosis can be left-sided pleural effusion secondary to pneumonia. But if a patient who is having carcinoma of breast, she develops left-sided chest pain, and after that she started having dyspnea, then our diagnosis, probable diagnosis, will be left-sided pleural effusion secondary to CA breast, metastatic pleural effusion secondary to CA breast. All right. So history should be in chronological order. All right. So are you people with me? So symptoms appear which appear first will be written first, and symptoms which are coming afterwards, they will be written after that. So here, one thing which is very important is that if a person who is having fever, उसको 3 महीने से फीवर है, तो हम क्या लिखेंगे? फीवर since 3 months के fever for 3 months.
जल्दी बताओ, फीवर फॉर 3 months, तो सिंस कब लिखेंगे? वेरी गुड, सिंस कब लिखेंगे? गुड, ये कौन है? अनोशा खान। तो जब हमें जो एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता है, 3 months, 3 days, 2 hours, so we will write for, और since, like since morning, जब आपको एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन ना पता हो, since last summer, since 21st of June, ठीक है? तो since के अंदर एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको नहीं पता होता, और for के अंदर आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता होता है। गुड, वेरी गुड, Minha. All right. So we are going to first ask for presenting complaints which brought the patient in, and after that we have to ask for what will be the next heading? History of present illness. ठीक है? History of present illness is very good. Arisha, Anas, Sarish. Okay. So history of present illness जो है वो start होती है when the patient was completely all right. So you will start that my patient was all right 3 months back when she experienced, इस तरह से हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। उसके बाद जो है उसको ये वाली कंप्लेन हुई, उसके बाद जो है ये हुआ, फिर वो अपनी जीपी के पास गई, जीपी ने जो है उसको ये दवाई दी, उस दवाई से उसको फायदा हुआ, लेकिन वापस उसको ये सारी जो है प्रॉब्लम हुई, और जब ये सारी प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद वो हमारी इमरजेंसी में आई और हमने उसको यहाँ पे एडमिट कर लिया। तो पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर आपने हॉस्पिटल तक पहुंचा देना है, ठीक है? अब जो है हिस्ट्री, जैसे कि वी हैव डिस्कस प्रीवियसली, इज एन आर्ट। तो आर्ट को एक्सपर्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड एट द सेम टाइम हिस्ट्री इज साइंस ऑल्सो। साइंस को जो है ग्रैप करने के लिए आपको पढ़ना होता है। ऑलराइट, सो आज का जो होमवर्क है वो ये है कि आप अपनी क्लिनिकल बुक खोलेंगे और हिस्ट्री टेकिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? और जब आप लोग वार्ड्स में आएंगे तो फिर जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो वी विल टेक वन सिम्टम वन बाय वन, और उसके अंदर हम जो है देखेंगे कि क्या क्या जो है हमें मालूम करना है और उसकी क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। ऑलराइट, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी कंप्लेन से स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम cough. All right, good, cough. Okay, so Galaxy A5. Okay, cough. लेकिन जो है मतलब it was not a question, it was just a suggestion कि कहाँ से start करें. So we will ask the patient, for how long have you been coughing? Is it an episodic cough, or are you having it at a certain time of the day? Is it nocturnal? क्योंकि नॉक्टर्नल कॉफ किस चीज से होती है, किन डिजीजेस के अंदर होती है? नॉक्टर्नल कॉफ एस्मा के अंदर होती है, नॉक्टर्नल कॉफ पैरोक्सिस्मल, नॉक्टर्नल कॉफ जो है वो पल्मोनरी एडिमा के अंदर हो सकती है कि लेटने के ऊपर, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो इज इट सीजनल? अगर पेशेंट कह रहा है कि आई हैव बीन कॉफिंग सिंस माय चाइल्डहुड, तो वी विल आस्क वेदर दिस कॉफ इज एग्रीवेटेड इन सर्टेन सीजन्स, जो कि एस्मा के अंदर होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हम पूछेंगे कि कॉफ इज इट, जैसे कि जो है शुजाने का, इज इट ड्राई और इज इट प्रोडक्टिव? ओके, तो व्हाट इज प्रोडक्टिव कॉफ? जल्दी से आंसर चाहिए, व्हाट इज प्रोडक्टिव कॉफ? यस, हुस्ना एंड शुजा। Productive cough is the cough in which there is sputum, and non-productive cough, Abdulaziz, okay. Non-productive cough is the cough in which there is no sputum. So I had cough today in the morning, and I brought up minute amount of sputum. So what are we going to call it? Was it a dry cough or productive cough? How do we quantify कि हम जो dry, yes, scanty sputum, very good, scanty sputum शुजाने का, लेकिन then what will be the definition of productive cough?
एनीवन? In spoons. All right, very good. Usna. So we are going to quantify it. हम लोग साइंटिस्ट हैं. All right. एक यार्ड कितना होता है ये कैसे पता चलेगा हमें? एक यार्ड स्टिक पड़ी हुई है जो कि एक यार्ड की है म्यूजियम के अंदर, और उसके बराबर की कोई भी चीज होगी तो वो एक यार्ड होगा. इसी तरह एक स्टोन पड़ा हुआ है जिसका जो है वेट है 1 पाउंड, उसके बराबर जो चीज होगी वो 1 पाउंड की होगी उसके वेट के बराबर. ऑलराइट. सो बिकॉज पेशेंट्स आर लेमैन, सो वी नीड, अब वो आपको मेजर करके तो कोई स्पूटम जो है एक्सपेक्टोरेट नहीं करता है. So we ask in last 24 hours or in an average day and night, how much amount of sputum do you bring out? Is it around a tablespoon, a teaspoon, a full glass? All right. So protective cough is cough in which there is around 20 ml of sputum production in 24 hours. Sahi? And in certain books it's written then more than 15 ml. तो अगर पेशेंट टीस्पून में बताएगा तो किसी को पता है कि एक टीस्पून कितना ml होता है? नहीं पता? ओके, 1 teaspoon is 5. Very good. A5. 1 teaspoon is 5 ml. And tablespoon? Tablespoon is, no, not 10 ml, not 20 ml, it's 15 ml. All right. So 1 tablespoon, average tablespoon का जो size होता है वो it's equal to 3 teaspoons. And what about a cup? A cup is around 250 ml, not 100 ml, not 200 ml. Yes, 250 ml. Sayyid Asara Khalid. All right. So, okay. So the next question is that what can be the causes of cough with scanty sputum, very little sputum, or dry cough? Something which is not due to respiratory system. All right. So can cough occur without involvement of respiratory system? जल्दी जल्दी बताओ ना ताकि हम आगे चलें. क्या टाइम हो गया? टाइम तो अभी काफी है. यस यस, some medication. Very good. Good. So what are those medication which causes cough? Very good. Shujauddin, ACE inhibitors. All right. And what is good? Gastroesophageal reflux disease. All right. So what is gastroesophageal reflux disease? एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है एट द प्लेस जहाँ पे हमारा जो है इसोफेगस स्टमक से जो है मिलता है. सो इफ द एसिड कम्स इनटू द इसोफेगस, इट ट्रिगर्स वेगस, और वेगल नर्व की वजह से फिर जो है कॉफ रिफ्लक्स जो है एग्रीवेट हो सकता है और एस्मा भी हो सकता है. सो कॉफ कैन अकर ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कॉफ कैन अकर ड्यू टू मेडिकेशंस, cough can occur due to pleural effusion. ठीक है. As I think जो pleural effusion मैंने ही पढ़ाया था, and we know कि जो pleura is not in connection with lung. ठीक है. Pleura is the covering of the lung. ठीक है. And pleural effusion occurs between visceral and parietal pleura. So जितना बड़ा pleural effusion होगा उतना वो lung को अंदर की तरफ पुश करेगा. So if the cause of pleural effusion is not due to lung pathology, so pleural effusion will not cause productive cough. ठीक है जी. फिर उसके बाद जो हमने जो अमाउंट, हाँ हम जो स्कैंटी स्प्यूटम की बात कर रहे थे, नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेस के अंदर स्कैंटी स्प्यूटम होगा. इसके अलावा जो है एलर्जीज के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर स्कैंटी स्प्यूटम होता है. एस्मा के अंदर जो स्प्यूटम जो है आमतौर पे जो है प्रोडक्टिव कॉफ नहीं होती है, थोड़ा सा जो स्प्यूटम होता है. ठीक है जी. अब कौन सी जो कंडीशंस होती है जिसके अंदर स्प्यूटम
ज्यादा होता है, जिसमें प्रोडक्टिव कॉफ होती है? एनीवन? Chronic bronchitis. Very good, Anas. So the definition of chronic bronchitis is, ये जो है असल में क्लिनिकल डेफिनेशन होती है chronic bronchitis की. If someone is having cough, productive cough for more than most of the days of 3 months for 2 consecutive years, where all the causes of cough are excluded. ठीक है जी, तो ये chronic bronchitis होता है. इसके अलावा इन नमूनिया देयर इज प्रोडक्टिव कॉफ which can be foul smelling, which can be purulent, क्योंकि पस होती है. ऑलराइट, फिर उसके बाद जो है वेरी गुड नमूनिया, ओ मामा हक. ठीक है जी. फिर उसके बाद जो है हमने बात की थी कि एक ग्लास या एक कप का जो है क्या ट्यूबरक्लोसिस. वेरी गुड मिन्हा मुर्तजा. ट्यूबरक्लोसिस के अंदर प्रोडक्टिव कॉफ हो सकती है. ऑलराइट, सो हमने बात की थी कि 250 ml जो है वो स्प्यूटम जो है आ सकता है. तो इज दैट पॉसिबल कि किसी जो कंडीशन के अंदर इतना ज्यादा जो है स्प्यूटम आए? वेरी गुड शुजाउद्दीन. कोपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम आ सकता है. Yes, Galaxy A5, but you have to tell me the condition, not in carcinoma. In bronchogenic carcinoma, there can be dry cough or productive cough. All right. So there are certain conditions in which there is copious amount of sputum, which is in cups और कभी कभार बाल्टियां भर के भी होता है. One of the condition, these are purulent conditions. One of them is bronchiectasis. Number 1. Number 2, ब्रोंकिक्टेसिस के ऊपर जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है. ठीक है जी, अब सिल्वर मेडल किसको मिलता है? मैंने हिंट भी दी है. प्रूलेंट स्प्यूटम जो है ये जो है ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो है इन्फेक्शंस होते हैं. आईएलडी नो आईएलडी के अंदर ड्राई कॉफ होती है. नमूनिया में प्रोडक्टिव कॉफ होती है. नमूनिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए, ये मुझे नहीं पता जीओआरडी क्या होता है. टीबी के अंदर प्रोडक्टिव कॉफ होती है. वेरी गुड. ये कौन है? अनस को जो है गोल्ड मेडल मिल गया. लंग एब्सेस. ठीक है जी. तो नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन होती है एब्सेस फॉर्मेशन, और जब एब्सेस फॉर्मेशन होती है तो वहां पे एरोबिक या एरोबिक बेसिलाई दे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, तो एक कैविटी बन जाती है जिसकी जो है कम्युनिकेशन विद ब्रोंकस होती है, एंड देयर इज कोपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम. एम्पाइमा प्रूलेंट कंडीशन है, लेकिन एम्पाइमा क्योंकि प्लूरल के अंदर होता है तो एम्पाइमा के अंदर जो है वो ड्राई कॉफ होती है. ऑलराइट, तो चलें जी, ये जो सिल्वर मेडल भी हो गया, गोल्ड मेडल भी हो गया, सॉरी ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड मेडल रहता है. और कौन सी कंडीशन है? सिस्टिक फाइब्रोसिस. इट्स अ गुड थॉट, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिक्टेसिस की कॉज होती है. सार्कोइडोसिस में ड्राई कॉफ होती है. गोल्ड मेडल छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी. अच्छा जी, तो हमने जो है कॉफ जो है तकरीबन जो है कवर कर लिया है. वी हैव सो फार हमने ये कर लिया कॉफ कब से है, कौन से टाइम के ऊपर होती है, क्या उसकी कोई जो है उसके साथ स्प्यूटम है तो उसका कलर क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है. कुछ कंडीशंस होती है जिसमें फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम होता है, प्रूडेंट कंडीशंस होती है. ठीक है. अब जो है उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम इज हिमोप्टिसिस. तो व्हाट इज हिमोप्टिसिस? हिमोप्टिसिस की स्पेलिंग याद कर लेना. ठीक है. हिमोप्टिसिस इज blood in sputum. Very good. And if there is blood in vomiting, what do we call it? जल्दी जल्दी लिखा करो. हेमाटोमेसिस. वेरी गुड. मीना की राइटिंग स्पीड शायद जो थोड़ी सी तेज है बाकियों के मुकाबले में, क्योंकि इंटेलिजेंट सब है. वेरी गुड. ओके, सो hemoptysis is blood in sputum, and when someone experiences hemoptysis, so it rings a bell. ठीक है. तो अगर किसी को हेमोप्टिसिस है तो व्हाट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन?
कब से है, ठीक है। नंबर 1, इफ समवन इज सेइंग कि मुझे हेमोप्टिसिस जो है वो फॉर द लास्ट 5 years हो रही है, ठीक है, तो फिर यू कैन रिलैक्स, ऑलराइट। एंड देन यू आर गोइंग टू आस्क कि उससे पहले कोई इन्फेक्शन तो आपको नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर भी हेमोप्टिसिस होती है, और जैसे कि जय शुजा ने कहा कि सीए लंग के अंदर भी हेमोप्टिसिस होती है। तो यू डोंट एक्सपेक्ट अ पेशेंट हु इज हैविंग सीए लंग टू बी लिविंग फॉर लास्ट 10 or 20 years, ऑलराइट, क्योंकि सीए लंग इज एग्रेसिव ट्यूमर और इसका डबलिंग टाइम बहुत कम है। सो इज द कॉफ प्रोडक्टिव इन सीओपीडी? यस, सीओपीडी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एक वो है वेरिएंट है, उसके अंदर जो प्रोडक्टिव कॉफ होती है। ओके, सो देन अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसको हम जो हेमोप्टिसिस को जो क्वांटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग के जो कितना जो ब्लड इन 24 आवर्स आ रहा है। तो 200 ml, 400 ml, 600 ml, less than 200 mild, 200 to 400 moderate, and more than 600 or yeah, more than 400 severe, all right। so फिर उसके बाद जो है हमें जो है हेमोप्टिसिस को हेमेटोमिसिस से जो है डिफरेंशिएट करना है। हेमोप्टिसिस को हेमेटोमिसिस से हाउ डू वी डिफरेंशिएट? इज द ब्लड कमिंग इन vomiting? Do you feel nausea before bringing up blood? Do you cough? Does it come with cough or does it come with vomiting? Are there food particles in it? Are you having melena associated with it? Do you have abdominal symptoms or do you have respiratory symptoms? All right. So that is color of blood. Very good. किसने बताया अभी color of blood? Galaxy A5 ने बताया. So in hemoptysis, the color is usually fresh red color, and in the हेमेटोमिसिस कलर कैसा होता है? कॉफी ग्राउंड कलर होता है, ऑलराइट। क्योंकि एसिड के साथ जब ब्लड मिल जाता है तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाता है, ठीक है जी। सो ये हमने अच्छा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेमोप्टिसिस? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, वेरी गुड। कौन से? इजहान? ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेरी गुड। ये किसने बताया था? हदीका। ब्रोंकोजेनिक ब्रोंकिक्टेसिस, वेरी गुड। लंग कैंसर, वेरी गुड। फॉरेन बॉडी हो सकता है लेकिन नॉट अ यूजुअल कॉज। और इसके साथ अगर आप एक और ऐड कर लें तो लिस्ट तकरीबन जो है कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज लंग एब्सेस। सपोरेटिव होता है तो उसके अंदर पस भी होती है और ब्लड भी होता है, ऑलराइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री के हाई ग्रेड फीवर था, शुरू में प्रोडक्टिव कॉफ थी, फिर उसके प्लूरेटिक टाइप ऑफ चेस्ट पेन था, उसके बाद कोपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम आने लग गया जो कि फाउल स्मेलिंग है, और जो कभी कभार ब्लड आता है। सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस विल बी लंग एब्सेस, ऑलराइट। और इसके अलावा पोस्टल चेंज के ऊपर जो है प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम ज्यादा हो जाती है। सो इतनी इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री, ऑलराइट। तो दैट रिमाइंड्स मी कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एक बहुत मेजर चीज जो है मिस कर दी, और वो थी स्मोकिंग हिस्ट्री। सो स्मोकिंग हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम जो है पल्मोनोलॉजी वार्ड के अंदर होते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेशेंट का जो है हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो है स्मोकिंग हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, ठीक है। एंड एज वी आर साइंटिस्ट, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हु इज स्मोकर एंड हु इज अ नॉन स्मोकर। तो हु इज अ स्मोकर? हाउ मेनी स्मोकर्स आर देयर इन दिस क्लास? रेज योर हैंड। नहीं है कोई स्मोकर? उस दिन था, आज सो रहा है। चलो, सो हु इज अ स्मोकर? नहीं नहीं, नाम नहीं लेंगे। No one will tell. So why will they smoke if they are ashamed of smoking? One should not do. Very good. Vinesh Kumar, who has consumed 100 cigarettes in his lifetime, is a smoker, and a smoker can never be a non-smoker. जिसने 100 cigarettes consume की हैं लाइफ में, he can be a smoker or he can be an ex-smoker. So who is an ex-smoker?
ex-smoker is someone, जल्दी बोलो, quit 3 months ago, wrong. Who quit smoking? आज सुबह मैंने सिगरेट छोड़ दी तो आई एम एक्स स्मोकर? नो. एक्स स्मोकर इज बशीर. वेरी गुड बशीर. ओके, विनेश कुमार इज बड़ी अच्छी इसके ऊपर स्मोकिंग के ऊपर नॉलेज है. सो ही इज राइट. Who has taken last cigarette 6 months back? So that will be called an ex-smoker. So what's the yardstick of measuring that how much cigarettes has someone consumed? Let's say a person who has been smoking for last 10 years and has been consuming 10 cigarettes a day versus a person, yes, very good, pack years. तो इतनी लंबी तकरीर की जरूरत ही नहीं है. So we calculate pack years. Pack years का फॉर्मूला क्या है? Number of cigarettes smoked, average number of cigarettes smoked per day into number of years divided by 20. I repeat, number of cigarettes averagely consumed in a day multiplied by number of years a person has been smoking divided by 20. All right. And what's the significance of pack years? In certain diseases, in certain exposure to smoking, in certain pack years, certain diseases are more prevalent. If someone has been having a history of 10 pack years, so he is prone to develop COPD due to smoking. And if someone has consumed around 15 pack years, he is at risk of developing bronchogenic carcinoma due to smoking. All right, sorry हमने मिस कर लिया था, तो चलें. अब जो हमने हेमोप्टाइसिस डिस्कस कर लिया था. नाउ कमिंग टू, अब कौन सा, वेरी गुड, ये किसने लिखा है? दाऊद. सिगरेट्स प्लस ईयर्स डिवाइडेड बाय 20. ओके, नेक्स्ट सिम्टम कौन सा जो है डिस्कस करें? चेस्ट पेन. तो पहला सवाल कब से है? माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? ठीक है. फिर उसके बाद किस जगह पे है? सही है. फिर उसके बाद जो है किस पोजीशन के अंदर जो है होता है? क्या जो है ये पेन जो है वो प्लूरेटिक इन नेचर है? प्लूरेटिक ऑफ नेचर क्या होता है? प्लूरेटिक नेचर क्या होता है? पेन विच aggravates on taking a deep breath. If it's pleuritic in nature, it can be due to pleural effusion, pneumothorax, it can be due to pneumonia, and it can be a muscular pain. ठीक है जी. aggravating factors, relieving factors, onset, चोट तो नहीं लगी थी, ठीक है, तो chest pain. Duration, site, onset, severity, character of pain. Sharp है, gripping है. If someone is having a sudden onset left-sided chest pain which increases on exertion and radiates to left hand or jaw, what will be the cause? Very good. Angina pectoris can be the cause. Okay, sudden onset chest pain and which is radiating to the back. जल्दी जल्दी बताओ. Sudden onset of chest pain, dyspnea, radiating to the back. Cholecystitis. Yes, aortic dissection. कौन है ये? आमना फारूक. Very good. Okay. Sudden onset chest pain, sharp, dyspnea, young patient, breathless, was completely all right. Not effusion, not gastritis. Gastritis के लिए central pneumothorax कौन है? हदीका. Good. So this is how you come to a diagnosis with the help of history. All right. Then come to हमने जो shortness of breath हमने कर लिया था ना. सबसे पहले मेरे ख्याल में shortness of breath किया था. Cough की थी, हेमोप्टाइसिस किया, chest pain किया, fever.
फीवर कब से है? इज इट लो ग्रेड और हाई ग्रेड? तो लो ग्रेड क्या होता है? लेस देन 102, हाई ग्रेड मोर देन 102। फिर उसके बाद जो है फीवर जो है वो कंटिन्यूस है, इंटरमिटेंट है, ठीक है, बेस लाइन को टच करता है, फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्रीज करता है, या फिर जो है बेस लाइन को टच ही नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फीवर जो है वो जो है कितने दिन, सबसे पहले तो कितने दिन से है, ठीक है। फिर जो है if someone is having fever for the last 2 months with cough, hemoptysis, and he is a contact of tuberculosis, then your first provisional diagnosis will be pulmonary tuberculosis. If someone is having high grade fever for 2 days with left-sided pleuritic chest pain and foul-smelling sputum, then your diagnosis will be pneumonia. Very good. And mind you that in bronchogenic carcinoma, patient can experience fever. All right. And in autoimmune diseases, fever can be there. ठीक है जी. So fever, फिर उसके बाद जो है वेट लॉस, ठीक है, और फिर जो है उसके बाद जो है वी विल जंप टू द पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशंस, allergy history, family history, then some personal history, like his sleep, like his habits, like what kind of water are they consuming, social history, economical history, and history की सारी headings देख लेना, maybe I am missing something, and then we will go to examination. ठीक है जी. हिस्ट्री के अंदर कोई चीज अगर किसी को पूछनी हो तो ऑक्यूपेशन तो हमने जो कर लिया था जी, ब्रेथलेसनेस तो हमने डिस्कस कर लिया ना, नहीं किया? डिस्निया हमने नहीं किया डिस्कस, चलो डिस्निया डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले तो कब से डिस्निया है, ठीक है जी. उसके बाद जो है ये डिस्निया एपिसोडिक है या फिर जो है ये एक्सर्शनल है, क्या ये डिस्निया किसी जो है खास पोस्टर के ऊपर होता है? If someone is having dyspnea on lying down, what do we call it? What do we call it? Orthopnea. Very good, very good, very good. ठीक है जी, इसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं. What are the causes of orthopnea? जल्दी जल्दी बताओ भाई. Effusion, pulmonary edema. Very good. अच्छा जी, congestive cardiac failure. Very good. So in cardiac conditions होता क्या है कि सर्कुलेशन के अंदर जो है ब्लड है, हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हुआ है, तो ब्लड सारा का सारा पूल होके लेग्स के अंदर आ जाता है, जैसे हम पीडियल एडिमा कहते हैं. जब पेशेंट लेटता है तो ये ब्लड वापस से सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है और लंग्स के अंदर डम हो जाता है, तो दैट वी कॉल पल्मोनरी एडिमा. पल्मोनरी हाइपरटेंशन नो. ओके, सो if someone is having dyspnea on lying down, we call it orthopnea, and it is common in cardiac conditions which lead to pulmonary edema. अच्छा, एक और सिमिलर कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया. पैरोक्सिस्मल मतलब ये कि अचानक से उसको जो हो जाता है, नॉक्टर्नल रात में डिस्निया. तो इसके अंदर होता ये कि इसका जो है ऑर्थोपनिया ज्यादा डेंजरस होगा कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया ज्यादा डेंजरस होगा? पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया. पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया में क्या होता है कि पेशेंट इज स्लीपिंग, आफ्टर 3 hours पेशेंट सडनली गेट डिस्नेक और उठते ही जाता है, भागता है, उसको जो एयर हंगर होती है, दरवाजा खोलता है या खिड़की खोलता है और आके जो सांस लेता है. दिस इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया. होता क्या है, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जो ब्लड जो कि पूल डाउन हुआ है वो इतना नहीं है कि लेटते ही उसको जो डिस्निया हो गया, ठीक है, इसके अंदर 3 hours लगे, सही है. और एक पेशेंट है वो जैसे ही लेटता है उसका पल्मोनरी एडिमा एकदम से इतना बढ़ जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
सो ऑर्थोपनिया मीन्स एडवांस डिजीज। पैरोक्सिस्मल डिस्निया ऑर्थोपनिया से पहले होता है। पहले पैरोक्सिस्मल डिस्निया जो होता है, और जब ये डिजीज उससे आगे चली जाती है, अनचेक्ड होती है या ट्रीट नहीं हो रही होती है, तो फिर ऑर्थोपनिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। एस्मा के बारे में क्या पूछना है कि एस्मा जो है वो ऑर्थोपनिया करता है? नो। एस्मा के अंदर एपिसोडिक जो है ब्रेथलेसनेस होती है, और ये जो है आमतौर पे अर्ली मॉर्निंग होती है, नाइट के अंदर भी हो सकती है, और जो है आफ्टर जो है एक्सपोजर टू सर्टेन फ्यूम्स, या फिर जो है कोई इमोशनल जो है स्ट्रेस, या फिर जो है कोई सिगरेट स्मोक करे उससे एग्रीवेट हो जाता है, या फिर जो है किसी ने आफ्टर एक्सरसाइज भी हो सकता है। वेरी गुड। ठीक है जी। प्रेसिपिटेट हो सकता है। हिस्ट्री आमतौर पे चाइल्डहुड होती है, साथ में और एलर्जीज की हिस्ट्री होती है, वीजिंग होती है, and it gets better with taking short acting bronchodilators, or it can go away, the episode can go away itself. ठीक है। एस्मा तो मेरे ख्याल में हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। सो अच्छा, एक तो ये हो गया कि अच्छा, एक और चीज ये कि all the conditions in which या फिर जो है even in pulmonary conditions like pleural effusion, if a patient lie down, he is lying on his or her respiratory muscles. तो उसकी वजह से a patient who is having respiratory symptoms may experience ऑर्थोपनिया। ठीक है। लेकिन ऑर्थोपनिया आमतौर पे कार्डियक डिजीजेस के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है जी। अब एक पेशेंट है, वो लेटा हुआ है तो उसको डिस्निया नहीं है, बैठ जाएगा तो उसको डिस्निया होगा। व्हाट डू वी कॉल इट? मतलब ऑर्थोपनिया इज डिस्निया ऑन लाइंग डाउन। वेरी गुड सैयद जैन अली शाह। प्लेटिपनिया। प्लेटिपनिया इज डिस्निया ऑन सिटिंग अप। और अब सैयद जैन अली शाह को करना क्या है कि कॉजेज ऑफ प्लेटिपनिया जो है ना वो ढूंढ के जो लाने। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर याद नहीं रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो है काम जो है वो अगर आदमी खुद से करे ना तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक। अच्छा जी, ये हो गया डिस्निया। डिस्निया के अंदर कुछ रह गया? ड्यूरेशन हो गया, एपिसोडिक हो गया, ऑर्थोपनिया हो गया। टेटिपनिया इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि उसको हम जो है हिस्ट्री के अंदर जो है पूछें। हाँ, then there are certain diseases in which there is dyspnea on exertion. For example, cardiac, taken. Someone who is having congestive anemia, very good, impressive. Husna is thinking out of the box also. एनीमिया के अंदर जो है डिस्निया ऑन एक्सर्शन होता है, और साथ में जो एक्स और पेन्स होते हैं आफ्टर एक्सर्शन, और इसके अलावा जो है सिंकोपी होती है ऑन गेटिंग अप। एस्मा में डिस्निया ऑफ एक्सर्शन नहीं होता है। एस्मा के अंदर एपिसोडिक एपिसोड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, वेरी गुड इजहान खान। सीओपीडी, वेरी गुड अनस एंड उसामा। सीओपीडी के अंदर जो है पेशेंट जो है बड़ा सुकून से होता है जब तक बैठा होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बैड इज द डिजीज, बट आफ्टर एक्सर्शन डिस्निया प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस you differentiate COPD with asthma in that sense that asthmatics are not dyspneic on exertion, they are dyspneic episodically, and in COPD dyspnea gets worse on exertion and gets better on rest. Unstable angina के अंदर जो dyspnea on exertion जो होगा बिल्कुल associated with chest pain. After exercise asthma aggravates हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो है दे आर नॉट डिस्निक ड्यूरिंग वॉकिंग और ड्यूरिंग क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, दे गेट और ड्यूरिंग रनिंग, दे गेट डिस्निक 15 मिनट्स आफ्टर दे हैव सेटल डाउन, या फिर जब काफी टाइम गुजर जाता है। नमूनिया के अंदर पेशेंट इज यूजुअली डिस्निक एट रेस्ट, क्योंकि उसके अंदर जो है पूरा लोब इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, या फिर सेप्टिसीमिया हुआ है। ऑलराइट,
सो आई थिंक जो हमने डिस्निया भी जो कवर कर लिया है। अब जो आप लोग जो अपनी जो क्लिनिकल बुक्स हैं, और आई वांट एवरीवन टू टेक दिस मैसेज कि अच्छी बुक पढ़नी है। अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छी बुक पढ़नी है। Do we mention grades of Dyspnea in history? We should mention grades of dyspnea in history. The grading होती है dyspnea की, very good अरीशा नवाज। तो कौन कौन सी टाइप की जो ग्रेड्स हो सकती हैं? हम लोग जो पल्मोनोलॉजी के अंदर ग्रेडिंग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं MMRC स्केल, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल। अरे ये तो मैंने पढ़ाया था COPD के अंदर। If someone who is dyspneic on unaccustomed exercise, this is grade 0. फिर उसके बाद अगर someone who is dyspneic on climbing upstairs, तो grade 1. फिर उसके बाद someone who is dyspneic on walking 200 meters, that is moderate dyspnea, and someone who is bedbound is severe dyspnea. All right, तो ये MMRC scale है dyspnea का। All right, so yes, we can do grading of dyspnea also. Very good. अच्छा जी, so now should we jump to examination? Yes, we have got half an hour. Saturate तो नहीं हो गए आप लोग? How would we diagnose on cor pulmonale? You want to ask on the basis of history, how are we going to diagnose cor pulmonale? Cor pulmonale को diagnose history के ऊपर alone करना वो थोड़ा सा जो है ना challenging है, ठीक है? But with the help of history and examination, cor pulmonale हम जो diagnose कर सकते हैं। So पहले तो मुझे दाऊद बताएंगे व्हाट इज कॉर पल्मोनल। चले दाऊद नहीं, कोई भी बता देगा व्हाट इज कॉर पल्मोनल। नहीं बता रहा कोई? इट इज वेरी गुड, राइट हार्ट फेलियर विदाउट लेफ्ट हार्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, राइट हार्ट फेलियर, pulmonary hypertension causing right heart hypertrophy and failure, right ventricle hypertrophy, pulmonary hypertension, right sided heart failure। अभी तक जवाब सही वाला आया नहीं है। इट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। पल्मोनल कहाँ है भाई? वेरी गुड, ये कहाँ गया? कंजेशन ऑफ, कहाँ चला गया भाई? सही जवाब था, बहुत ही ऊपर चला गया। Right heart failure due to pulmonary cause, very good. Right heart failure due to pulmonary cause, very good. Right ventricle hypertrophy, no. इससे पहले भी किसी ने कहा था, यस, सबसे पहले ये हमें कहा है बुशरा मुराद ने। राइट हार्ट फेलियर रिजल्ट इन कंजेशन ऑफ लंग। उसके बाद राइट हार्ट फेलियर मिन्हा ने भी सही कहा, ड्यू टू अ लंग डिजीज। फिर उसके बाद जो है ये कौन है? शानजे इलियास, पल्मोनरी कंजेशन लीडिंग टू राइट हार्ट राइट साइडेड फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं। अच्छा जी, सो okay, so just let me give you an example. A patient who had tuberculosis 5 years back and has been having productive cough with copious amount of sputum on and off and episodes of hemoptysis. He is having now dyspnea on lying down. He is having pedal edema, and when you examine him, he has got tender hepatomegaly, raised JVP, and
देन यू कैन डायग्नोज के जो है इसको शायद जो है कॉर पल्मोनल है। ऑलराइट, तो आई थिंक जो है आपको आंसर मिल गया। ओके, सो जंपिंग, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है तो हम जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को जो डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हम जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें चेक करनी होती हैं, उनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आ जाते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर। तो लाइक क्योंकि ये आप जो कहीं और पे भी डिस्कस कर सकोगे। सो इन चेस्ट एग्जामिनेशन लाइक इन ऑल द अदर एग्जामिनेशन वी स्टार्ट फ्रॉम, हम वाइटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जंपिंग डायरेक्टली टू चेस्ट एग्जामिनेशन। वेरी गुड। इंस्पेक्शन, सो इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन वो स्कैनिंग सबसे पहले हो जाती है। इंस्पेक्शन, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट patient should be informed that I am going to examine you, and patient should be properly exposed. And properly exposure in respiratory system examination is that patient should not be wearing a shirt. There should be proper lighting, and there should be proper exposure and privacy for the patient. And ideally, patient should be lying down on a 45-degree angle. Sir, is this a clinical class? I mean, ward or lab? Osama Rafiq, I didn't get you. Yes, it is a clinical class. ये जो हम जो SBL जो करते हैं, ये इसके अंदर जो होता ये है कि आमतौर पे उसके अंदर एक सिनेरियो देते हैं और उस सिनेरियो को हम डिस्कस करते जाते हैं। वो इंटरेक्टिव होता है, लेकिन जो इतनी बड़ी क्लास के, और ये एक छोटे ग्रुप के अंदर होता है, लेकिन इतनी बड़ी क्लास के साथ जो SBL करना जो वो थोड़ा सा मुश्किल है। और जो क्योंकि जो वी आर लैकिंग अवर क्लिनिकल पोस्टिंग, सो आई थिंक जो इट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर रेलेवेंट कि हम जो पहले जो क्लिनिकल जो उसको कर सकें। ठीक है, सो इंस्पेक्शन के अंदर सबसे पहले जो हमें जो जाना है पेशेंट के फुट एंड के ऊपर, क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमने जो रेस्पिरेटरी रेट कैलकुलेट कर लिया है। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू सी फॉर एनी एसिमेट्री, we want to see that is there a scar, any pigmentation, is there any indrawing of ribs, okay, is patient dyspneic or not, what is the shape of the chest. Very good. So what is the usual shape of chest? Barrel shaped? No. जो यूजुअल जो चेस्ट का शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है ऑन क्रॉस सेक्शन, दैट इज 2:5 का रेशियो होता है। 5 इन एंटीरियर पोस्टीरियरली 2 और जो है लिटरली जो है 5। ऑलराइट, तो इट शुड बी इलिप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन। और अगर जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज इक्वल टू लिटरल डायमीटर, देन वी कॉल इट बैरल शेप चेस्ट। ठीक है, ट्रांसफर डायमीटर इज ग्रेटर देन एंटीरियर पोस्टीरियर। वेरी गुड, 2:5 का ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसको मैं लिटरल कह रहा था। वेरी गुड, कौन है? मिन्हा। वेरी गुड, ओके। इन क्रॉनिक डिजीजेस लाइक सीओपीडी, चेस्ट शेप जो है एम्फाइसीमा में, जैसे इजान कह रहे हैं, बेल शेप चेस्ट हो जाता है। ऑलराइट, फिर if someone who is having a massive left-sided pleural effusion, there might be a bulge on left side. ठीक है, or if someone is having a collapse of lung on left side, there will be chest wall will go inside toward that side. There will be a depression over there. फिर इसके अलावा there can be sternum जो है वो बाहर की तरफ जो निकली हुई हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? लेमन टर्म के अंदर से हम कहते हैं पिजन शेप चेस्ट। लेकिन जो आप लोग जो डॉक्टर्स हो तो आप लोग क्या कहेंगे? मीना ने कहा वेरी गुड, पेक्टस कार्निवेटम। और अगर जो फनल शेप चेस्ट हो, मतलब ये कि जो चेस्ट अंदर की तरफ हुआ उसे क्या कहेंगे? पेक्टस एक्सकेवेटम। वेरी गुड। स्कोलियोसिस जो है वो तो वर्टिकल कॉलम का वो होता है। वेरी गुड, पेक्टस एक्सकेवेटम एंड पेक्टस कार्निवेटम जो है वो आपको
आप अप्रिशिएट कर सकते हो एंटीरियरली चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो है इंस्पेक्शन के अंदर जो आप एपेक्स बीट देख लोगे, अगर आपको नजर आ रही है तो पहले आप फुट एंड से देखोगे, उसके बाद आप जो है राइट साइड के ऊपर पेशेंट के आ जाओगे और जो है वहां से आप जो है पेशेंट को जो है इंस्पेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो है वी आर गोइंग फॉर आफ्टर इंस्पेक्शन palpation. All right. So in palpation, we start from trachea. What we do is that we keep our index finger and ring finger on medial end of the clavicle. We go from trachea, and when we come into supraesternal notch, we dig our finger in the groove lateral to trachea. और जिस साइड पे हमारी फिंगर ज्यादा अंदर जा रही है, trachea is shifted away from that side. All right. The trachea may be central or may be shifted. So in pleural effusion and pneumothorax, trachea will be pushed. In collapse, fibrosis, trachea will be pulled. All right. After that, we go for apex beat. And apex beat, what we do that we keep palm of our hand pura ke pura on left side. What is apex beat? It's the outermost and lowermost palpable part of heart. और उसके बाद हम उसको एक फिंगर से localize करते हैं. After localizing it, we count the ribs. Ribs are count from the angle of Lewis, which is the joint between manubrium and body of sternum. And ये जो होता है second intercostal space. Consolidation के अंदर जो है क्या लिखा है? कंसोलिडेशन, नमोनिया, एडिमा, डल साउंड. साउंड के ऊपर तो अभी हम आए नहीं है, अभी तो हम सिर्फ पैल्पेशन पे आए हैं. ओके, वेरी गुड. नॉर्मली एपेक्स बीट इज इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस within the mid-clavicular line, and mid-clavicular line is an imaginary line which is running from the mid part of clavicle to midpoint of inguinal ligament. All right. So usually fifth intercostal space on the left side within mid-clavicular line. Certain diseases can cause shifting of apex beat. Apex beat can be pushed and pulled, और वही वाले causes हैं जो trachea के push and pull के हैं, except for cardiomegaly. Cardiomegaly के अंदर apex beat will be more lateral from the mid-clavicular line. All right. उसके बाद जो है हम जो है chest movement देखते हैं. Chest movement is done above the nipple, below the, at the nipple and below the nipple. Above the nipple, what we do is that we keep both hands on the patient's on the patient's anterior chest, above the on तकरीबन at the point of trapezius and upper chest. और हम जो है what we see कि कौन सा हाथ जो है ज्यादा ऊपर हो रहा है. ठीक है. अच्छा जी, फिर at the nipple and below the nipple what we do is that we keep fingers in the intercostal space and thumbs को करीब लाते हैं, और जो साइड ज्यादा मूव हो रही होती है तो इसका मतलब है दूसरी साइड कम मूव हो रही है. All right. So that is how we do chest movement. Then chest expansion is done with a measuring tape. ठीक है जी. And that's all for palpation. उसके बाद percussion के अंदर हमारे पास जो है एक फिंगर होती है फॉर जो राइट साइडेड पीपल, जो हमारा जो है जो मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड होती है और उसका जो डिस्टल फैलेंज होता है, वहां पे हम मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड से 90 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक करते हैं. सो द स्ट्राइकिंग फिंगर इज कॉल्ड फ्लेक्सर, एंड ऑन द फिंगर विच वी आर स्ट्राइकिंग वी कॉल ए फ्लेक्सीमीटर. और हम 2 बार स्ट्राइक करके फिंगर को उठा लेते हैं, और जो मूवमेंट इज एट आवर wrist joint. All right. And the causes of hyperresonant percussion note is more rare, like in very good pneumothorax or a big bulla. All right. Then the cause of dull percussion node is
pneumonia, collapse and edema नहीं. Pleural effusion is right, लेकिन जो pleural effusion होता है we call it stony dull. ठीक है. So percussion note can be hyperresonant, can be resonant, can be dull and can be stony dull. Abscess के अंदर भी ये dull percussion note होता है. And if we are percussing a hollow viscera, तो उसके अंदर जो है टिम्पैनिक टाइप की नोट होती है. ठीक है, तो ये नोट्स होती हैं और ये जो एक्सपीरियंस से आपको आ जाएंगी. आफ्टर परकशन जो है वो हम जो है पहले हम लिवर डलनेस निकालते हैं राइट साइड के ऊपर कि लिवर कौन सी इंटरकॉस्टल स्पेस पे, फिर एक साइड को हम दूसरी साइड से कंपेयर करते चले जाते हैं. ऑलराइट, एंड देन जो है फाइनली वी रीच टू ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन के अंदर जो है हमारे पास स्कोप होता है. इस स्कोप के अंदर जो है हम जो है और ऑस्कल्टेशन आप लोगों ने सबने स्टेथोस्कोप देखा होगा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं. ऑस्कल्टेशन के अंदर जो है हमें ये चार चीजें जो है चाहिए होती हैं. विल देयर बी एनी रेजोनेंट चेंजेस इन एम्फाइसीमा? यस, इफ there is hyper resonant, bilateral hyper resonant. All right, so where were we? Yes, so in auscultation we need to check for four things. Air entry हर जगह पे मौजूद है कि नहीं है. वी नो कि जो निमोथोरेक्स के अंदर जो लंग वहां पे नहीं होता है तो एयर एंट्री नहीं होगी. एयर एंट्री, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी वेसिकुलर एंड सेकेंड इज ब्रोंकियल. वेसिकुलर जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर जो है इंस्पायरेशन is longer than expiration and there is no gap in between. In bronchial, there is a gap between both the phases, that is inspiration and expiration, and you can hear a tubular sound, and inspiration will be equal to expiration. So we have discussed air entry, type of respiration, then added sound. So what are added sound? For us, there are only two added sound. One is known as wheezing or rhonchi, and second is craps, crackles or rails. ठीक है? So two. One is rhonchi and other is craps. Abnormal breathing sound, bronchial breathing, stridor, wheeze, crackle, cruel rub. वेरी गुड. लेकिन जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अभी सिर्फ दो चीजें हैं. एक है वीस, दैट इज विस्लिंग साउंड, और दूसरी है क्रैप्स, विच इज बबलिंग साउंड. ऑलराइट, सो वीज इज द विस्लिंग साउंड, और वीज होती है जब एक नैरो स्पेस से एयर रश आउट करती है. इन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस लाइक एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिक्टिस एक्सेट्रा. और क्रैप्स दो टाइप के होते हैं. फाइन क्रैप्स, कि अगर हम अपने हेयर्स को ऐसे ऐसे रब करें तो दीज आर फाइन क्रैप्स, पल्मोनरी एडिमा के अंदर होते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस के अंदर होते हैं. और कोर्स क्रैप्स आर बबलिंग साउंड, जो कि जब ब्रोंकाई जो कोलैप्स हो और ओपन हो उससे आता है, लाइक इन ब्रोंकिक्टिस. कोर्स क्रैप्स. अच्छा जी, फिर उसके बाद जो फाइनल चीज है वो है वोकल रेजोनेंस. ठीक है, वोकल रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि हमने स्टेज जो है रखा चेस्ट वॉल के ऊपर और हमने पेशेंट को कोई ऐसा लफ्ज कहा जो कि 9 की साउंड हो. ठीक है, जैसे 3 3 3 3 3 3 3, और जब भी हम स्टेप रखेंगे पेशेंट कहेगा 3 3 3, हमने इस या 9 9 9, और हमने राइट को लेफ्ट से जो कंपेयर किया, फिर उसको जो है ऊपर वाली पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कंपेयर किया कि वोकल रेजोनेंस इज इट इक्वल, इज इट इंक्रीज और इज इट डिक्रीज. ठीक है, आइडिया क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होती है, उसके आगे ट्रैकिया है, उसके आगे ब्रोंकाई है, ऊपर लंग की कवरिंग है, उसके ऊपर चेस्ट वॉल है, और हम उसके ऊपर से ऑस्कल्टेट कर रहे हैं. थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा जो है होराइजन को थोड़ा सा एक्सपेंड करें. इस साउंड प्रोड्यूस हो रही है वॉइस बॉक्स से, ट्रैकिया के थ्रू ट्रांसमिट होकर ब्रोंकाई में आ रही है,
उसके ऊपर हमारा जो एल्यूलाई का पूरा बैग है, उसके ऊपर पूरी चेस्ट वॉल है, और हम ऊपर ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, पेशेंट कह रहा है 3-3-3। ऑलराइट, सो इफ आई रिमूव ऑल द एल्यूलाई इन बिटवीन, यानी कि लंग कोलैप्स हो गया, या हमने इन एल्यूलाई को कंसोलिडेट कर दिया, सॉलिड कर दिया, जैसे कि नमूनिया के अंदर होता है, ठीक है, तो साउंड ऊपर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो जो है वोकल रेजोनेंस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वोकल रेजोनेंस इज कंसोलिडेशन, कोलैप्स, कैविटेशन, ठीक है। फिर अब जो है इसी के ऊपर जो है ना, मैं इसके अंदर बहुत सारा पानी भर देता हूँ, प्लूरल इफ्यूजन आ गया, तो ऊपर जो है 3-3-3 आवाज जो है नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैं बहुत सारी एयर और डाल देता हूँ, लाइक इन न्यूमोथोरैक्स, आवाज ऊपर नहीं आएगी, तो वोकल रेजोनेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो है आई थिंक this is all we had to discuss in history taking and clinical examination. Yes, vocal resonance can be equal on the both sides. Vocal resonance can be increased and vocal resonance can be reduced. Tactile vocal fermaters was done in palpation, लेकिन क्योंकि टैक्टाइल वोकल फर्मेटस और वोकल रेजोनेंस एक ही टाइप की चीज होती है, तो टैक्टाइल वोकल फर्मेटस जो है अब जो है ऑब्सोलीट हो गया है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट एनी मोर। क्वेश्चंस, आर देयर एनी क्वेश्चंस? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आ गया? Will vocal resonance be decrease in ILD? You tell me. No, it won't be. It can be increased, yes. लेकिन जो हम वोकल रेजोनेंस एक आदमी की दूसरे आदमी से कंपेयर नहीं करते, हम एक साइड की दूसरी साइड से कंपेयर करते हैं, एंड वी नो कि आईएलडी के अंदर सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न होता है, तो इट विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन आईएलडी के अंदर जो क्रेप्ट समय मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज नाउ के जो है ओपन योर बुक्स एंड read your clinical history and respiratory system examination in detail, or once you are going to join your wards, then you are going to practice all this. At least आप अपनी जो theoretical knowledge है उसको अभी आप जो है increase करें, ताकि जैसे ही जो प्रैक्टिकल का टाइम आए तो आपको जो है theoretical knowledge के ऊपर जो टाइम ना स्पेंड करना पड़े। Can you tell why does vocal resonance is decrease in edema and increase in consolidation? I did not say that it is decrease in edema. I said that it is decrease in pleural effusion. Okay. Why vocal resonance is increase in consolidation? इसको जो है हम जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं। साउंड जो ट्रैकिया से प्रोड्यूस होके ब्रोंकाई तक पहुंची, इतना तो क्लियर है। उसके ऊपर एल्यूलाई है, ठीक है। एल्यूलाई जो है वो जो है एयर बैग्स हैं छोटे छोटे, जैसे कि रैपिंग मटेरियल होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप है। दे आर कॉजिंग हिंड्रेंस ऑफ साउंड टू गो फ्रॉम ब्रोंकाई टू द चेस्ट वॉल। इफ वी कंसोलिडेट इट, सॉलिड मीडियम हमने कर दिया, बीच में से एयर निकल गई, सॉलिडिफाई हो गया ना, कंसोलिडेशन मीन्स के लंग इज सॉलिडिफाइड, तो सॉलिड मीडियम से जो साउंड है वो ज्यादा इजीली ट्रांसमिट होगी। तो जिस साइड पे कंसोलिडेशन है उधर वोकल रेजोनेंस विल इंक्रीज, ठीक है। और एडिमा के बजाय फ्यूजन, अगर हम यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड भर दें तो इट विल कॉज
hindrance of sound to travel from it to the chest wall. I think ये clear हो गया होगा. Any other question? ठीक है जी. So I thank you all for this interactive session and I hope कि जो चीज़ें आपको जो समझ में आ गई होंगी और when you are going to join your wards तो फिर उसके बाद जो है real practices. Thank you very much.